aware of the difference between elements, compounds, and mixtures. Do you remember the differences? Mixtures are like food items that we consume. They contain everything in proportion that we desire. We can add or remove a substance according to our need. Compounds, on the other hand, are those which have substances in fixed proportion. So if you change the proportion of substances, it will affect the compound and render it changed. For instance, if you remove even one hydrogen from H2O, that is water, the composition changes and water as a compound does not exist. Thus, fixed proportion is a must in compounds. Lastly, we have the elements. These are the purest forms of any known substance. They are composed of only the same type of atoms. There are neither proportions nor random mixing of substances. So can we say that compounds and mixtures are made up of elements? Absolutely. So in nature, it implies that elements are the basic forms of every material that we find around. And hence, in order to study every substance around us, we need to begin with studying the various elements. So where do we begin? Maybe the reactivity or maybe the physical properties first, right? I'm asking if we can study the reactivity and physical properties of each of the elements. Is that feasible? Well, all these would have been valid only if the elements would be few in numbers. Do you know the number of elements that exist? Astonishingly, the number of elements that we find naturally occurring is 98, while the total number of elements known to mankind is 118. So how do we study each element individually for all its properties? Looking at the number of elements that exist, I don't think it would be convenient to pick every element individually and study all the properties, right? Imagine you have to organize the kitchen. You will not place any vessel or eatable randomly anywhere. You will organize the shelves and refrigerator in the most convenient way which is suitable for your needs. Similarly, for studying so many elements, we need to organize them appropriately. An organization begins with arrangement. Yes, arranging the various elements is the first step towards understanding their properties. And arrangement is possible only if we categorize them, right? This is how we organize the elements. And this process of categorization helps us study the elements with ease. In other words, we've classified the elements here. Classification of elements is categorizing the various elements into groups based on similarities and differences in their properties. The classification system helps us in grouping the various elements into categories which we refer to as the periods. Hence, the system is also referred to as the periodic classification of elements. Let's get to know how हेलो स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आपने एनिमेशन में भी देखा होगा और समझा होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इंट्रोडक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके कुछ अर्ली अटैम्प्ट्स को बताएंगे हम। 115 एलिमेंट्स, 116, 18 भी देता है कहीं कहीं, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। नॉन टिल डेट एंड मेनी मोर नॉन इन फ्यूचर। All elements differ in their properties due to presence of different kind of atom in them. डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होने का इनका प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, इसके कारण क्लासीफाई करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ difficult to study each and every element individually and know its properties and uses. Therefore, they have been classified into groups on the basis of their similarity in properties. मतलब प्रॉपर्टी में अगर सिमिलर है तो उसको क्लासीफाई कर देंगे एक ग्रुप में। जैसे तुम सारे बच्चे क्लास 10 के हो तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। क्या सेम है इसकी प्रॉपर्टी, कि तुम सारे बच्चे क्लास 9 को पास किए और सारे का एज 13 to 15 ईयर्स होगा। क्लियर। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ similarity in properties. Example, all of you belongs to X10 because you resemble in your properties. For example, all of you have passed class 9 and all of you are in age group of 13 to 15 years. अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज सो दैट अ सिस्टमेटिक स्टडी कुड बी मेड अबाउट देम। तो हम लोग कह सकते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in order of in on the basis of सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इससे पहले ये तो क्लासिफिकेशन हो, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले भी एलिमेंट को सिंबलाइज करना बहुत मुश्किल था। मतलब उसको हम पहचाने कैसे? बहुत सारे एलिमेंट थे, उसको सिंबल से हम लोग पहचानते थे। तो उसके लिए कुछ अटैम्प्ट्स हैं, उस अटैम्प्ट्स को हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले एल्केमिस्ट टेबल ऑफ सिम्बल्स। ये एल्केमिस्ट साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एलिमेंट को सिम्बल्स के द्वारा क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। जो सिंबल आप सामने देख सकते हो, इसको आपको याद नहीं रखना है, बस एक दिमाग में ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक ग्रुप में डाल दिया, इसको आप ध्यान रखोगे। एल्केमिस्ट सिंबल है, ये भी एल्केमिस्ट का ही है। और दूसरा एल्केमिस्ट के बाद आए थे डाल्टन साहब, जो इन्होंने ऐसा कुछ दिया था, सिंबल के द्वारा ही उन्होंने ही रिप्रेजेंट किया था। लेकिन ये सिंबल कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए इन्होंने इजी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया था। ये सारा डाल्टन का है, ये भी डाल्टन का है, ये भी डाल्टन का है, और ये जो है एल्केमिस्ट का है, और ये क्या है? किसका है? एल्केमिस्ट का है। इसके बाद जो है आया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिम्बलाइजेशन कहते हैं। इसमें मॉडर्न सिम्बलाइजेशन में क्या था? तो आप ध्यान दोगे, और ये रहा आपका मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है? इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। या तो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा, या तो एलिमेंट का सेकेंड लेटर होगा, या तो एलिमेंट का लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर होगा, या तो लैटिन नेम का सेकेंड लेटर होगा। इसी तरीके से इसको क्या किया गया है? लिया गया है। जैसे आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के लिए H लिखा है मैंने, लिथियम के लिए Li 2 लेटर, बेरिलियम के लिए Be, और सोडियम के लिए Na। तो क्योंकि सोडियम के लिए S होना चाहिए, नहीं S नहीं होना चाहिए। सल्फर के लिए S होगा, देख सकते हो यहाँ पे होगा। सल्फर के लिए S पहले आ चुका है, इसलिए सोडियम के लिए यहाँ पे S नहीं, सोडियम नेट्रियम होता है। नेट्रियम से इसमें, नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, तो क्या निकल के है? Na निकल के है। तो ये सारा सिंबल ऑफ एलिमेंट हुआ। आज हम लोग ये सिंबल्स के बारे में चर्चा की है। ये बेसिक है क्लासिफिकेशन के लिए कि तीन तरीके से सिंबलाइज किया गया था। पहला सिंबल अल्केमिस्ट द्वारा, दूसरा सिंबल किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा, और तीसरा सिंबल जो है मॉडर्न सिंबल है, जिसको आप कह सकते हो लेवोजियर का भी ये सिंबलाइज किया हुआ हो सकता है, जिन्होंने मेटल और नॉन मेटल में सिंबलाइज किया। फिर इसको मॉडर्न सिंबलाइजेशन आप कह सकते हो, ठीक है ना? तो इसको आप ये तीनों को याद रखोगे। कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे कि कौन कैसे क्लासीफाई किए एलिमेंट्स को, और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, वहाँ से आप देख लोगे। थैंक यू क्लास।